السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کرافٹ یوٹیوب چینل۔ اس خطے میں سب سے پہلی جیل بھرو تاریخ پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے ہوئی، جب انگریز کی حکومت تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے جتنی بڑی تعداد میں آج عمران خان کی جیل بھرو تاریخ میں آ رہے ہیں۔ دوسری جیل بھرو تاریخ 1983 میں ہوئی۔ تیسری جیل بھرو تاریخ 1986 میں ہوئی۔ 1986 میں تحریک بحالی جمہوریت MRD نے جیل بھرو تاریخ چلائی۔ 18 نومبر 2004 کو متحدہ مجلس عمل کے صدر قاضی حسین احمد نے جیل بھرو تاریخ شروع کی۔ 6 نومبر 2007 کو خیبر پختونخوا کے وکلاء کی جیل بھرو تاریخ کا اعلان شروع ہوا، لیکن وہ صرف دھمکیوں تک محدود رہا۔ اس کے بعد اب عمران خان نے 2022 کو میاں والی جلسے میں جیل بھرو تاریخ کی دھمکی دی تھی۔ اس کے 133 دن بعد 17 فروری 2023 کو جیل بھرو تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ اس خطے میں جو سب سے پہلی جیل بھرو تاریخ شروع ہوئی، ہندوستان چھوڑو تحریک مہاتما گاندھی نے 8 اگست 1942 کو شروع کی تھی۔ 8 اگست 1942 کو اپنے خطاب میں کہا کہ کرو یا مرو۔ مہاتما گاندھی کے سخت بیان کے بعد کانگریس نے احتجاجی ریلیاں نکالنا شروع کر دی، انگریزوں سے ہندوستان چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ ان سب چیزوں کا برطانوی حکومت نے سخت نوٹس لیا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی سمیت کئی کانگریس لیڈروں کو گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نے اس تحریک کی کوئی حمایت نہیں کی اور نہ ہی اس تحریک میں کانگریس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد 1981 میں تحریک بحالی جمہوریت MRD کے نام سے قائم ہونے والی سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے پاکستان میں جیل بھرو تاریخ کا آغاز اگست 1983 میں سابق صدر ضیاء الحق کے خلاف کیا۔ اس جیل بھرو تاریخ میں ملک بھر سے MRD سے منسلک لوگوں نے گرفتاریاں دی، جس میں وکیل، سیاسی کارکن، رہنماؤں کے علاوہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے شمولیت حاصل کی، جو اسی جمہوری تاریخ سے وابستہ تھی۔ تحریک کا مقصد جمہوریت کی بحالی اور مارشل لا کا خاتمہ تھا۔ 1986 میں MRD نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف دوسری بار جیل بھرو تاریخ کا آغاز کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں کوڑے لگائے جاتے تھے، پھانسی کی سزا اور تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ MRD جیل بھرو تاریخ کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کو اقتدار سے الگ کرنے میں ناکام رہی۔ MRD کی کامیابی یہ تھی کہ وہ ضیاء الحق کی مکمل فتح اور جمہوریت کی فاسد شکست کے بیچ حائل ہو گئی۔ عوام کا مطالبہ تھا کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں۔ اس تحریک کے دوران ملک بھر میں بڑے پیمانے پر جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ بالآخر 16 نومبر 1988 کو عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 18 نومبر 2004 کو متحدہ مجلس عمل کے صدر قاضی حسین احمد کی جانب سے حکومت کو متنبہ کیا گیا کہ اگر ان کی 28 نومبر 2004 کو ہونے والی احتجاجی ریلی میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ جیل بھرو تاریخ کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، تاہم اس کی یہ دھمکی محض دھمکی ہی رہی۔ 6 نومبر 2007 کو خیبر پختونخوا کے وکلاء نے ملک بھر میں صدر پرویز مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے خلاف بھوک ہڑتال کے کیمپ لگائے اور ساتھ ساتھ جیل بھرو تاریخ کا بھی اعلان کیا۔ وکلاء کی جانب سے حکومت کو دی جانے والی دھمکی صرف دباؤ کے طور پر استعمال کی گئی اور پھر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ 13 نومبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے ایمرجنسی کے خلاف محترمہ بے نظیر بھٹو کی گھر میں نظر بندی اور ججوں کو برخاست کرنے کے خلاف احتجاج کیا، تو پولیس نے مختلف جماعتوں کے 100 سے زیادہ
कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी समेत दीगर जमातों ने मुल्क भर में जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था। इस तहरीक के दौरान अवामी पार्टी के 5 कारकुनों ने अदालत के ज़रिए कोट गुलाम मोहम्मद के पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी पेश की थी। 15 जनवरी 2018 को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर अशरफ आसिफ जिलानी ने उस वक्त के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़ा राजा ज़फ़र उल हक की रिपोर्ट को मंज़र आम पर लाने और तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान शहीद होने वाले कारकुनों की जानों का अज़ाले का मुतालबा किया। 27 जनवरी 2018 से लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ की धमकी दी गई। अशरफ आसिफ जिलानी ने ऐलान किया कि 27 जनवरी 2018 को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 कारकुनों ने पंजाब असम्बली के सामने अदालतों के ज़रिए गिरफ्तारी देके, जबकि 28 जनवरी 2018 को पार्टी के दीगर कारकुनों 100 के करीब पंजाब की जेलों में अदालतों के ज़रिए उस वक्त गिरफ्तारी देते रहे जब तक कि वे पंजाब भर की जेलें भर ना जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले 18 अक्टूबर 2022 को मियांवाली में जलसे में हुकूमत के ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक की धमकी देते हुए कहा था कि अगर कारकुनों को डराना धमकाना बंद ना किया गया तो वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ भी कर सकते हैं। 4 फरवरी 2023 को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अवाम से खिताब के दौरान कारकुनों को जेल भरो तहरीक के लिए तैयार रहने का कहा था। 17 फरवरी 2023 को इमरान खान ने ऐलान किया कि वो जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ 22 फरवरी 2023 को बुध के रोज़ लाहौर से शुरू करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू करें कि जिन्होंने हम पहले हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मरहले में जेल भरो तहरीक में 22 फरवरी 2023 को लाहौर से गिरफ्तारियां दी गईं, जिसमें 216 लोगों ने गिरफ्तारी दी। वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी। उन्होंने पुलिस वालों ने कहा जिसने गिरफ्तारी देनी है इसमें बैठ जाए। सबसे ज़्यादा लोग लाहौर में निकले। हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब गिरफ्तारी देने के लिए आए थे। लेकिन इमरान खान ने कहा था इस वक्त सिर्फ यंग लोग गिरफ्तारी देंगे। सबसे पहले पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी दी। शाह महमूद कुरैशी ने वैन का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गए। उसके साथ बाकी लोग भी वहां खड़ी गाड़ियों में बैठ गए। 216 लोगों ने गिरफ्तारी दी जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में हैं। याद रहे कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मकसद मुल्क भर में लाकानूनियत, ऐन की शिकनी और महंगाई के खिलाफ पुरअमन जेल भरो तहरीक शुरू की गई है। पहले मरहले में लाहौर से गिरफ्तारी देने वालों में से पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, मुराद रास, सेनेटर वलीद इकबाल, उमर सरफराज चीमा और मोहम्मद मदनी शामिल हैं। इन समेत 216 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी थी, जिनमें से कुछ को कोट लखपत जेल में रखा गया है। सूबे के मुख्तलिफ जेलों में इनको भेजा गया है। 24 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल लिया में हैं। 24 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल बखर में हैं। 25 कारकुन को राजनपुर जेल में मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल में, जबकि आज़म सवाती रहीमयार खान जेल में मुंतकिल किए गए हैं। मुराद रास को डीजी खां, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया और उमर सरफराज चीमा को बखर जेल में मुंतकिल किया गया है। मोहम्मद मदनी को बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर मुंतकिल किया गया है। दूसरे मरहले में 23 फरवरी को पेशावर से गिरफ्तारियां देनी थी, जहां सैकड़ों कारकुन जमा हुए। प्रिजन वैन में कारकुन बैठे रहे।
लेकिन शाम तक किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। फिर इमरान खान के कहने पर सब लोग वापस चले गए। 24 फरवरी 2023 को रावलपिंडी से शेख रशीद और सैकड़ों कारकुन जमा हुए, जिनमें से 200 कारकुन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शेख रशीद वापस अपनी लाल हवेली चले गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। चौथे मरहले में 25 फरवरी 2023 को मुल्तान से कारकुनों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन मुल्तान से चंद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकी सबको छोड़ दिया गया। 5वें दिन गुजरांवाला से यास्मीन राशिद की मौजूदगी में कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी, लेकिन उनके नए तरीके से गिरफ्तारी दी। अपने सब ने वाइट कपड़े पहने हुए थे, हर शर्ट के ऊपर मुख्तलिफ स्लोगन लिखा हुआ था। 27 फरवरी को सरगोदा से चेयरमैन के कहने के मुताबिक 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। मुल्क भर के चारों सूबों की जेलों में कैदियों के लिए गुंजाइश लगभग 57,000 के करीब है, जबकि वहां कैद अफराद की तादाद 85,000 है। सूबा सिंध की जेलों में गुंजाइश है 13,538, जबकि वहां पे कैदियों की तादाद 23,463 है। पंजाब की जेलों में गुंजाइश है 27,262, जबकि वहां पे कैदियों की तादाद है 45,347। बलूचिस्तान में कैदियों की गुंजाइश है 2764, जबकि वहाँ कैदियों की तादाद है 2760। KPK की जेलों में कैदियों की गुंजाइश है 13,106, जबकि वहाँ कैदियों की तादाद 13,851 है। मुल्क भर में जेलों में कैदियों की गुंजाइश है 56,670, जबकि वहाँ पे कैदियों की तादाद 85,421 है। इस तरह तो जेलें पहले से फुल हैं, तो PTI के कारकुन कहाँ जेलों में जाएंगे? जेलों में जाने का शौक तो है, लेकिन किस तरह से जेल में जाना है, कैसे जाना है और जेल भरो तारीख कैसे शुरू की जाती है, इसका कोई पता नहीं है। जबकि इन लोगों को चाहिए था कि लाहौर से जब जेल भरो तारीख शुरू की थी, कोर्ट के ज़रिए ये लोग जेल में जाते और सबके सामने उनके नाम तादाद का पता होता। इस तरह से तो कोई पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी और कितने लोग गिरफ्तार हुए या ना हुए। बहुत से लोग मिस भी हो सकते हैं। तरीकाकार भी यही होता है कि कोर्ट के ज़रिए गिरफ्तारी दी जाती है। दूसरे तरीके में जब आम तौर पे किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे दिन ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब इस तरह से ये जेल भरो तारीख में मजिस्ट्रेट के सामने किसी को पेश नहीं किया जा रहा। आगे देखें क्या होता है। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।